بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری یہی ایک ہی شیئر کرنی ہے، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا، بڑے لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے نقوی صاحب اس پہ ویڈیو بنائیں، اس پہ کوئی ویڈیو کریں۔ جناب میں نے کہا ہاں جی ہاں ویڈیو ضرور کریں گے۔ یہ جو براڈ شیٹ کے مالک نے سٹیٹمنٹ دیا اور پھر بھونچال سا آ گیا، کیا چھلانگیں لگا رہے تھے شہزاد اکبر صاحب اور کیا چھلانگیں لگا رہی تھی حکومت، اسی کا ذرا تھوڑا سا آپریشن کیا ہے، چیزوں کا آپریشن کیا ہے جناب۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی، بہت ہی جناب ساتھ رہیے گا، ایک سیکنڈ نہیں مس کرنے والا آج کی ویڈیو کا، آپ یقین کریں۔ براڈ شیٹ کے مالک نے چھترول کر کے رکھ دی ہے، یوں سمجھ لیں حکومت کی بھی، شہزاد اکبر صاحب کی بھی، کنٹرول ٹاور کی بھی، نیب کی بھی، سب کی بہت کچھ بتا دیا ہے براڈ شیٹ کے مالک نے۔ اور جناب یہ بھی کہا کہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو بندہ آیا اس بندے نے اپنا حصہ مانگا، اور براڈ شیٹ کے مالک نے بتایا وہ تھا کون۔ جی ہاں، اب آپ کو بھی بہت کیوریاسٹی ہو رہی ہوگی بھائی، تھوڑا سا صبر رکھیے گا، ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں۔ میں نے تھوڑا سا ٹائم پہلے ایک ویڈیو کی تھی، اس ویڈیو میں نے بتایا کہ نیب نے پاکستانی قوم کے، غریب قوم کے 7 ارب ڈبو دیے۔ کیسے؟ میں نے کہا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا کہ پکڑو جی نپو نواز شریف دی کرپشن، ٹھیک ہے نا جی، ادھر سے کچھ نکلا نہیں، وہ معاہدہ کینسل ہو گیا۔ جیسے ہی معاہدہ کینسل ہو گیا تو جیسے کہتے ہیں نا جناب رسیداں کڈو، انہوں نے کہا جناب پیسے کڈو۔ اب یہاں پیسے اس کو دیے نہیں، انہوں نے، نیب نے نہیں دیے، تو جناب کیونکہ کرپشن تو کوئی پکڑی نہیں گئی، نیب نے پیسے دیے نہیں ہیں۔ جیسے نیب نے پیسے نہیں دیے وہ چلے گئے کورٹ میں کمپنی چلی گئی، ہو گیا جرمانہ۔ وہ جرمانہ تقریباً پاکستانی روپوں میں اس وقت تھا، جو 2018 میں اس کا فیصلہ ہوا تو اس وقت تھا تقریباً کوئی 2-2.5 ارب، 2.25 ارب، اس طریقے سے۔ نیب نے سستی کی، ساتھ سستی بھی کی، بدنیتی بھی کی، ان کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو یہ ایون فیلڈ مقدمات میں فیصلہ آ گیا ہے شریف فیملی کے خلاف، ان کی اپارٹمنٹ ہے وہاں پر، آپ ان کو شامل کرو اور اپارٹمنٹ آپ کو مل جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح، آپ کا جو ڈبل ہو گیا، یہ ہم آپ کو جرمانہ بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ان کو شامل کیا۔ لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپارٹمنٹ کو کلین چٹ دے دیا، انہوں نے کہا ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل کوئی کرپشن سے نہیں بنے جناب، صاف شفاف آمدنی سے بنے ہیں، کوئی کرپشن نہیں ہوئی ان میں، اور نہ اس کیس سے کوئی تعلق ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جناب ان کو منہ کی کھانی پڑی، صبح کی ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ جرمانہ ہو گیا ڈبل۔ انہوں نے کہا، براڈ شیٹ نے کہا ہمارا جرمانہ کٹو جناب، جرمانہ دینا پڑا ان کو، ہرجانہ یا جرمانہ دینا پڑا 4.5 ارب سے زیادہ کو، 2-2.5 ارب تو یہ وکیلوں کی فیس دے چکے تھے، ابھی بھی کوئی وکیلوں کی فیس بقایا ہے نیب کے ذمہ، تو یہ کو 7 ارب سے زیادہ کا ٹیکہ لگایا۔ بس جب سے یہ حکومت خیر سے آئی ہے نا ماشاءاللہ، اس طرح سے ٹیکے ہی لگا رہی ہے۔ روز ویلٹ جو ہے نا جیسے ہوٹلز، وہ پیرس کا وہ کون سا والا ہے سکرائب ہوٹل، وہ بھی سارے کے سارے خیر سے گل ہو گئے ہیں، وہ بھی منجمد ہو گئے ہیں، ضبط ہو گئے ہیں۔ آ جائیں جناب، آ جائیں۔ براڈ شیٹ کمپنی کے مالک نے، جن کا نام ہے کاوے مساوی، انہوں نے الزام لگایا کہ شریف فیملی نے انہیں رشوت کی آفر کی تھی، ٹھیک ہے۔ بس یہ انٹرویو آنا تھا، یہ ویڈیو آنی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب نے پھر پریس کانفرنس جناب، پھر چھلانگیں لگانا شروع کر دی، پھر وہی کاغذ لہرانے شروع کر دیے، پھر وہی حکومت نے بغلیں بجانی شروع کر دیں، پھر وہ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے۔ اچھا شہباز گل صاحب ویسے ان کا کام ابھی تک پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہے کیا، مجھے تو نہیں پتہ چلا بطور صحافی، پتہ نہیں آپ کو یا عوام کو یا باقیوں کو پتہ چلا ہے، صرف ٹویٹ کر دینا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام صرف ٹویٹ کرنا ہی ہے تو بھائی ٹویٹ تو ذرا دیکھ کے کیا کریں۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو کی جو ہے نا، کیا کہا کہ کوئٹہ گئی ہیں تعزیت کے لیے، اور شام کو میوزک کی اس میں پارٹی میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ پتہ چلا وہ تو ویڈیو وہاں کی ہے ہی نہیں، اس جگہ کی، اس وقت کی ہے ہی نہیں۔ بھائی ٹویٹ کیا کریں شہباز گل صاحب، جو صرف آپ کو پیسے ہی اسی کام کے مل رہے ہیں اور تو پتہ نہیں کوئی کام ہی کوئی نہیں پاکستانی قوم کو آپ کا پتہ، تو پھر کم از کم یہ ٹویٹ تو ٹھیک کر لیا کریں میرے بھائی۔ اچھا جی، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان نے بھی ہیڈ لائن چلا دی، باقی میڈیا نے بھی ظاہر چلانی تھی، جب سرکاری نیوز ایجنسی نے چلا دی۔ ٹاک شوز میں بھی جناب وہ ڈسکس ہوا، جناب براڈ شیٹ کے مالک نے کہا ہے کہ نواز شریف نے ہمیں جو ہے نا
इस तरीके से शरीफ फैमिली ने या नवाज शरीफ ने रिश्वत की ऑफर की कि ये प्रोब रोक दो, ये तहकीकात रोक दो, इतनी रिश्वत ले लो। अच्छा, इल्ज़ाम की जो स्टोरी घड़ी गई वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, उसमें बड़े लैकुनाज हैं, बड़े फ्लाज हैं, बहुत ही खामियां हैं उस स्टोरी में। क्या है, जनाब ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक मिस्टर कावे मुसावी ने कहा कि 2012 में, अब जरा सुनिएगा और सर धुनिएगा, ठीक है ना। मैं बताता हूं, जी हां बताता हूं। उसने कहा, कब कहा कि जब शहजाद अकबर साहब के साथ जो बंदा आया उसने मुझसे रिश्वत मांगी, उसने मुझसे अपना हिस्सा मांगा, वो अपने हिस्से में इंटरेस्टेड था। वो बंदा कौन था? वो भी ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक ने बताया। जरा थोड़ा रुकिए। 2012 में ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक ने कहा कि एक शख्स आया, उस शख्स का नाम था अंजुम डार। वो शख्स मुझसे 2 मरतबा मिला, एक मरतबा मिला कैंटरबरी में और एक मरतबा मिला लंदन में, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा कि उस शख्स ने मुझे बताया कि वो नवाज शरीफ का भतीजा या भांजा है, और उस शख्स ने मुझे $25 मिलियन, यानी ये कोई 2.5 करोड़ डॉलर है, आज करें तो ये 4 अरब से ज्यादा बनता है, ठीक हो गया ना। और उसने कहा कि मुझे 4 अरब रुपए पाकिस्तानी की रिश्वत की पेशकश की कि आप ये तहकीकात रोक दो। तो अब 2012, जरा टाइम नोट कीजिएगा, 2012, ठीक हो गया ना। तो उन्होंने कहा कि ये रोक दो। तो अंजुम डार ने मुझे एक तस्वीर भी दिखाई, उस तस्वीर में वो नवाज शरीफ साहब से गले मिल रहे थे, और फिर कोई मुझे टेप रिकॉर्डिंग भी दिखाई जो उर्दू में थी, मुझे समझ नहीं आई। यानी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक इतने मासूम बन रहे हैं कि किसी ने आके तस्वीर दिखा दी कि जनाब मैं नवाज शरीफ का भतीजा हूं, उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है नवाज शरीफ के भतीजे हैं, और जनाब इतनी $25 मिलियन की ऑफर भी कर दी, ठीक। अच्छा, फिर सवाल हुआ, यह स्टोरी डॉन ने भी छापी है, ये सवाल हुआ कि क्या वो रकम आपने कबूल की? तो ये पेशकश, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि नहीं, मैं वो क्लास से डिस्कस करूंगा, और यही जो रकम है हम आर्बिट्रेशन की मद में लेंगे, वो जो मसालती वगैरह हो रही थी ना, उस आर्बिट्रेशन की मद में लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने फिर सवाल किया कि कहीं रिपोर्ट भी किया आपने? आखिर आपको इतनी रिश्वत की ऑफर हो रही थी, पेशकश हो रही थी, तो आप यूके गवर्नमेंट को बताते, आप उस आर्बिट्रेटर को बताते जो अदालत ने कायम किया था, मुकर्रर किया था, आप अदालत को बताते। आपने बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी बस हमने फैसला किया कि हमने रिपोर्ट नहीं करना। जरा देखिएगा सही, जरा कल्टियां और कलाबाजियां जरा देखिएगा, ठीक हो गया ना। पूछा कि वो बंदा कौन था? जी वो शरीफ फैमिली से पूछिए। यानी को जब ये पूछा कि ये बंदा कौन था, तो शरीफ फैमिली से पूछिए। जैसे इमरान खान साहब ने कहा ना कि मुझे 10 अरब की ऑफर की थी शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने जब जाके कोर्ट में दावा किया, अब खान साहब जाते नहीं वहां पे। अब वो कोर्ट जो है ना बार बार बरहमी का इजहार कर रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी एक वकील तब्दील तो कभी दूसरा वकील तब्दील, तो कभी एक पेशी तो दूसरी, तो कभी गैर हाजिरी। तो इस तरीके से इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है मेरे भाई, किसी की पगड़ी उछाल दो, जब तक फैसला नहीं होता ना उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। खैर आगे चलती है, काम की बड़ी बात है। वो बंदा बताना है ना कि शहजाद अकबर के साथ जो बंदा आया, ब्रॉडशीट कंपनी का मालिक कह रहा है वो बंदा मुझसे रिश्वत मांग रहा था, आ जाए। मुआहिदा खत्म हुआ 2003 में। उनसे सवाल हुआ कि मुआहिदा तो खत्म हो गया था 2003 में, कैंसिल हो गया, तो फिर शरीफ फैमिली ने 2012 में आपको क्यों ऑफर कर दी? भाई वो तो बंद हो गई थी ना, सारी तहकीकात ही बंद हो गई जनाब। उन्होंने ऐवी है कि पैकी मार दी, वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हो रहा था। भाई कोई सोचे कि जब मुआहिदा ही कैंसिल हो गया, हुकूमत पाकिस्तान ने आपसे मुआहिदा ही 2003 में कैंसिल कर दिया, तो 2012 में वो क्यों ऑफर कर रहे हैं? खुद उसके बाद तो उनकी अपनी हुकूमत भी आ गई, वो क्यों ऑफर कर रहे हैं? अच्छा जी, अब हुसैन नवाज साहब जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी बड़े रेलिवेंट और बड़े लॉजिकल पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि अंजुम डार तो कोई हमारा रिश्तेदार है ही नहीं, नो डाउट। उन्होंने कहा कि है तो सामने करें। उन्होंने कहा 9 साल तक इतने बड़े आदमी को पता ही नहीं चला कि वो बंदा कौन था। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के उन्होंने कहा कि 2 भाई हैं, 1 बहन है, उनके भांजे भतीजे सबके नाम पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है।
तो जनाब ये 9 साल के बाद कैसे ज़मीर जाग गया उनका, और 9 साल तक क्यों वो चुप रहे, और 9 साल तक लंदन में बैठ के इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ने कोई तहकीकात भी नहीं की, ये क्यों हुआ? बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही कावे मुसावी जो कि ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने इंटरव्यू में हुकूमत को ऑफर की, जरा सुनिएगा सुनिएगा सर धुनिएगा, ठीक है, उन्होंने हुकूमत को ऑफर की कि जनाब एवनफील्ड अपार्टमेंट में तहकीकात, हमने कहा कि हम एवनफील्ड यानी ब्रॉडशीट का मालिक कह रहा है, कावे मुसावी कह रहा है, मिस्टर मुसावी इज टेलिंग कि उन्होंने ऑफर की है हुकूमत पाकिस्तान को, पीटीआई की हुकूमत को, कि मैं आपको ये एवनफील्ड अपार्टमेंट की ना तहकीकात करके देता हूं। हुकूमत ने कहा हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। भाई क्यों? आप तो यहां नारे लगाते हैं कि हम उन अपार्टमेंट को जब्त करवाएंगे। आपने तो पाकिस्तानी कौम को बताया हुआ है कि वो अपार्टमेंट करप्शन की दौलत से बने हैं। आपने तो बताया हुआ है कि हम उन अपार्टमेंट जो एवनफील्ड के अपार्टमेंट है उनको जब्त कराएंगे। तो फिर जब आप इतने बड़े बड़े नारे लगा के यहां पे पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, जब ब्रॉडशीट का मालिक आपको कह रहा है कि मैं एवनफील्ड की तहकीकात करना चाहता हूं, तो आप उसको आगे करें जनाब, बिल्कुल करें। आपने कहा हम इंटरेस्टेड नहीं है, आपने $29 मिलियन तो दे दिए जो 4.5 अरब से ज्यादा, लेकिन आपने कहा कि तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि या तो वो करप्शन की दौलत से बने ही नहीं, या अगर वो बने हैं मुबैना तौर पे, तो फिर आपको तहकीकात से कौन रोक रहा है? भाई क्वेश्चन तो उठेंगे ना, क्वेश्चन तो बड़ा चौंका देने वाला। आ जाएं जनाब, पॉइंट टू बी नोटेड, उस पॉइंट पे आ जाएं। बड़ा चौंका देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला नुक्ता मुकावे मुसावी कहता है, मिस्टर कावे मुसावी कहता है कि एक शख्स मुझे शहजाद अकबर साहब के साथ मिला, वो तहकीकात से ज्यादा अपने हिस्से में दिलचस्पी रखता था। यानी वो जो शहजाद अकबर के साथ मुझे शख्स मिला, यानी शहजाद अकबर के साथ तो अभी मिला होगा ना, 2018 से अनवर्ड मिला है ना, वो शख्स मुझे मिला, वो तहकीकात में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। वो कह रहा था मेरा हिस्सा क्या बनेगा। हाँ जी, आगे 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 आगे, जरा रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे पता है आपको बड़ी क्यूरियासिटी हो रही है, मुझे पता है इसी पॉइंट पे बड़ी क्यूरियासिटी। एक वफद आया, ये मिस्टर कावे मुसावी कह रहा है, ब्रॉडशीट का मालिक कह रहा है, कहता है एक वफद आया 2018 में, तो मुझे भी कहा गया कि उस वफद से मिलूं, ठीक है। और ये कौन सा वफद, कैसा वफद? कहता नेशनल क्राइम एजेंसी NCA से मुज़ाकरात करने आया था। वो जो रकम NCA ने मुंजमद की थी, याद आ गया, वही तो रकम थी जो मलिक रियाज साहब वाली रकम थी। हाँ जी, ठीक हो गया ना वो। तो मुझे भी कहा गया कि आप भी इस वफद से जरा मुलाकात कर लें। मलिक रियाज साहब वाली रकम का पता है ना, जो मुंजमद की थी NCA ने। अब मैं कहता हूं कि अगर NCA अनाउंस न करती, ठीक हो गया ना, वो कितनी थी, 190 मिलियन पाउंड थी या कितनी थी, बहरहाल उसके वो रकम को देख लीजिएगा कितनी थी, बहुत बड़ी रकम थी। अगर वो अनाउंस न करती और पूरी प्रेस रिलीज जारी करती, तो कुछ उसमें से भी खा जाते हमारे लोग। अब उसमें आप अंदाजा करें, को कहते हैं कि मैं भी उनसे मिला, मुझे भी कहा गया कि आप उनसे मिलो, और मैं भी उनसे मिला। वो कैफे रूज है को नॉर्थ लंदन में, उसमें मैं वहां उनसे मिला। तो उस शख्स के जिसके पास तमाम दस्तावेजात थे, ज़ाहिर है वो रेलिवेंट शख्स होगा ना, ठीक हो गया ना। तो मैंने कहा कि आपने जो हमारा जुर्माना देना है ना, यानी ब्रॉडशीट कंपनी का मालिक उस शख्स को कह रहा है कि आपने, जरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ऐसे मजाक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट कंपनी का मालिक कह रहा है कि मैंने कहा कि आपके पास तो बड़े सबूत हैं, बड़े दस्तावेजात हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जो कुछ पाकिस्तान ने हमारा जुर्माना देना है उसको फिलहाल भूल जाए, ठीक है ना, आए हम मिल के काम करते हैं, मिल के चलें, ठीक है ना। और उन्होंने कोई परवाह नहीं की, उन्होंने शकूक शुबात का इजहार किया। तो फिर उसके बाद मैंने बताया उनको एक अकाउंट के बारे में, और मैंने कहा कि इसमें $1 अरब है, $1 अरब है। अच्छा, वो अकाउंट किसका है ये नहीं पता, ठीक हो गया ना, ये भी बता देते ना भाई, कम अज कम मैं ये कहता हूं अगर वो अकाउंट नवाज शरीफ का होता तो वो डेफिनेटली बता देते। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, तो वो बार बार, लेकिन वो मिस्टर कावे मुसावी कह रहे हैं, मिस्टर मुसावी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि हम मिलकर चलें, हम तहकीकात करें, हम ये करें वो करें, आपसे हम वो जुर्माना भी अभी नहीं मांगते जो आपने हमारा देना है उसको भी भूल जाएं। लेकिन वो बंदा मुझे बार बार कह रहा था कि मेरा हिस्सा कितना बनेगा, मुझे कितना दोगे, मुझे कितना दोगे, मेरा हिस्सा कितना बनेगा। मिस्टर मुसावी कह रहे हैं कि वो शख्स जो मुझसे मिला
वो एक जर्नैल था। हाय, नाम नहीं बताया उसने। अब आप खुद बताएं कि फिर उसके बाद उसने कहा कि एक रोज कबल फिर अचानक शहजाद अकबर साहब ने मुझे बताया कि हुकूमत तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, यानी पीटीआई गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट नवाज शरीफ। भाई यूं, मैं तो सादा अल्फाज में, सादा सा बंदा हूं, मैं तो सादा अल्फाज में कहूंगा, पीटीआई गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, यानी एवन फील्ड अपार्टमेंट से मुतालिक भी वो तहकीकात में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसमें फिर बातें दो हैं, तीसरा पहलू कोई नहीं। ठीक है ना? क्योंकि क्यों नहीं इंटरेस्टेड? यहां तो खान साहब करप्शन करप्शन करप्शन, डाकू को नहीं छोड़ूंगा, चोर को नहीं छोड़ूंगा, टोट बटोट को नहीं छोड़ूंगा, फलां बीमारी को नहीं छोड़ूंगा। तो भाई उधर क्यों नहीं करप्शन में इंटरेस्टेड? जब आपको ऑफर दे रहे हैं, जब आपको विदाउट एनी कास्ट ऑफर मिल रही है, तो एवन फील्ड डिपार्टमेंट की करें इंटरेस्टेड करें। या तो वो करप्शन से बने नहीं, या फिर जिनके हत्थे कुछ होता है ना भाई, उन्हीं की फिर डील हो चुकी है। अब समझ तो आ गई होगी आपको। कोई एक चीज जरूर है, अब कौन सी चीज है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता, बड़ा ही अहम नुक्ता, वही मिस्टर मुसावी ने कहा, कावे मुसावी ने, ब्रॉडशीट के मालिक ने, कि मुशर्रफ साहब के जमाने में ये जो तहकीकात शुरू हुई, तो अचानक थोड़े अरसे के बाद, यानी कि हमने तहकीकात शुरू की और थोड़े अरसे के बाद हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान, उस वक्त की हुकूमत यानी मुशर्रफ साहब की हुकूमत, जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नाम दिए गए कि इनके खिलाफ जरा ये प्रोब जो है ना, ये जो तहकीकात है फिलहाल रोक दो, ड्रॉप कर दो। ठीक हो गया ना? तो वो कहते हैं कि क्या नाम थे? उसमें एक नाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाऊ का भी था। वो ये ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक कह रहे हैं, मिस्टर मुसावी, वो कहते हैं जो बाद में मुशर्रफ के वजीर दाखिला भी बने, उनका नाम भी था। अच्छा, अब मैं यहां से मैंने कुछ रिजल्ट अखज़ किया। भाई बात वही है ना, कहते हैं जनाब जफर नकवी ये करता है, वो करता। भाई मैं तो जो देखता हूं ना, वही बात है कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। भाई बात ये है कि अगर मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का नाम दिया होता ड्रॉप करने के लिए, तो आज ब्रॉडशीट मालिक, कंपनी का मालिक, वो भी कह देता कि नवाज शरीफ का नाम भी मुझे दिया था ये ड्रॉप करने के लिए, कि इसके खिलाफ भी प्रोब न करो। इसका मतलब है प्रोब की है नवाज शरीफ के खिलाफ, मिला कुछ नहीं है। वही बात है कि वो क्या शेर था हैदर अली आतिश साहब का, कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।